Welcome back to the channel, guys. My name is Nitin Singh Rajput and you are watching Indian Aviation Jobs YouTube channel. So today I am going to talk about the questions of cabin crew and ground staff interview, and I will give you a short and simple answer and how to answer them. So keep watching the video, and before that, if you haven't subscribed Indian Aviation Jobs YouTube channel, go and subscribe now. Press the bell icon also to get notified whenever the new video is being posted, and also follow us on Instagram at Indian Aviation Jobs, and also like us on the Facebook. So let's get started with the video. So whenever I'm posting any new vacancy of any airlines or anything, so people have just got one common question, that what would be the question and what can be the GD topics. So today I am going to talk about it. So guys, listen carefully and try to implement in the interview, so it might help you in your upcoming interviews. So guys, first question they ask always, this is going to be your first question. ये आपका पहला क्वेश्चन होगा किसी भी इंटरव्यू में आप अगर जाते हो तो, जो रहता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ. अब टेल मी अबाउट योर सेल्फ मतलब क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, बट इसके मायने, इसके मतलब बहुत बड़ा है. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी टोल्ड इन जस्ट वन सिंपल क्वेश्चन. लाइक if I'll have to give you one example, then I'll give you one format which you are supposed to follow. If somebody asks you that tell me about yourself, then you are supposed to say your name, your age, your qualification, your experience if you have any, your family background, and your hobbies in the last, and try to keep it as simple as you can. Name like my name is Nitin Singh, my age is 24, and currently I'm working with the Cargo Service Center, and previously I worked with Tata Sia Airlines or Vistara, and also I worked with the Kambata Aviation, this kind of, I'm not giving my proper interview kind of thing, that's why I'm kind of hesitating in front of you people. But yeah, if you have to say, then say it in the normal format: name, age, your qualification, experience, and hobbies, family, then hobbies. So these are the 6 things you are supposed to include in your tell me about yourself in a question. So if interviewer is cross questioning you that, okay, suppose if you're telling that I've done a graduation or something, so he might ask you which stream, so you are supposed to specify the things. So he should not cross question. आपको आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर रखना है. आपको नाम, आपकी उम्र, आपका क्वालिफिकेशन, अगर आपने क्वालिफिकेशन बोल रहे हो तो यू आर सपोज टू टेल देम दैट आई हैव डन माय BCom, BSc और BA. डोंट से दैट आई एम ग्रेजुएट, just tell them I have done my BCom from this university or from this college. So this is how you're supposed to say. And if you're telling them your experience, just tell them I have worked in this company for 6 months, 1 year, 2 year, or whatever the duration is, and then go ahead with the flow and go with your family. Don't brief about your family, just tell my family consists of 2 or 3 members, whatever it is: my dad, my mom, and my sibling, 1 sibling or 2 sibling, depends, whatever is your family members number. So this is the way you're supposed to say to them. Don't extend it, don't stretch it, otherwise the much you will stretch it, उतने ज़्यादा ही क्वेश्चन वो पुटअप करेगा आपके सामने. तो ये सिंपल क्वेश्चन है. और गाइज मुझे एक बात और बता लेने दो, आप में से जो ये वीडियो देख रहा है, दे आर मोस्टली फ्रेशर्स. तो अगर आप फ्रेशर हो तो आप इतना कुछ मत सोचो कि आपको कंपनी के बारे में पूछेंगे, आपको ये पूछेंगे, आपको वो पूछेंगे. आपसे सिर्फ आपके बारे में पूछेंगे, वो भी आपका कम्युनिकेशन लेवल चेक करने के लिए. और इसके लिए आपको इतना ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं. आप इतना वरी मत हो जाओ, इतना भी कुछ मत टेंशन लेके बैठ जाओ यार कि मुझे ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ, कंपनी का विकिपीडिया पेज और इंटरव्यू के बारे में ये वो तैयारी, कुछ भी नहीं. बस कॉन्फिडेंट हो के ब्लैंक माइंड से जाओ कि जो आपके सामने क्वेश्चन पुटअप करेंगे आपके बारे में, वो आप बताओ. अगर आपको पूछ रहे हैं अबाउट योर सेल्फ, देन से अबाउट योर सेल्फ ओनली. अगर आपसे कुछ वो सपोज कुछ टेक्निकल टर्म्स पूछ लेते हैं कि ये क्या है, ये क्या है, सो इफ़ यू नो दैट, इफ़ यू हैव स्टडीड इट,
just say yes, I do know, and if you don't know, just honestly tell them, sir, I have not studied about this, so I don't know, and since I'm here, I have come here as a fresher, so I'm ready to learn, but I don't know. So if you can take me in, then it would be great, and I can learn things from your company by the training which will be provided to us. So this is gonna be your self introduction to the interviewer in the any interview, ground staff or cabin crew, it does not matter. So moving to the next thing, which is GD. GD मतलब लोगों के दिमाग में बहुत ही कुछ भरा पड़ा है कि GD, और GD से बहुत डरते हैं। क्यों डरते हैं? बिकॉज उनको लगता है मेरे सामने 10 लोग बैठेंगे, सबकी कम्युनिकेशन कैसे कैसे, किसी का अच्छा होगा, कोई ये मीडियम से होगा, कोई वो मीडियम से होता है। कुछ लोग मुझे बोलते हैं मैं हिंदी मीडियम से हूँ, मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, मेरा GD कैसे क्लियर होगा, मुझे तो इंग्लिश आती नहीं है। आपको क्या पता, आपके पास में जो 9 लोग बैठे, क्या पता आपसे वो कम नॉलेज हो उनको। कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, लेकिन कभी खुद को भी अंडर एस्टिमेट मत करो। आप दूसरों को अंडर एस्टिमेट मत करो, बट आप खुद को भी कभी अंडर एस्टिमेट मत करो। ये मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, अपने आप को कभी किसी से कम मत समझो। यू आर द ग्रेटेस्ट ऑफ ग्रेट, यू कैन डू एनीथिंग। सो अब आते हैं GD टॉपिक पे। GD टॉपिक में आपको करंट अफेयर के बारे में पूछ सकते हैं। सपोज़ अगर अभी कोई वर्डिक्ट है, अभी जो ये टाइम पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये टाइम पे हार्दिक पांड्या और KL राहुल का जो भी स्टेटमेंट आया कॉफ़ी विद करण में, सो इंटरव्यूअर माइट आस्क यू दैट टेल मी वट एवर हार्दिक पांड्या एंड KL राहुल सेड, वॉज इट हाउ यू जस्टिफाई दैट, यू नो। सो ही विल आस्क सब लोगों को, 10 लोगों को बोलेगा कि नाउ यू ऑल पीपल टेल मी हाउ यू कैन जस्टिफाई, देन यू काउंटर क्वेश्चन ईच अदर। सो ऑलवेज रिमेंबर वन गोल्डन रूल ऑफ GD टॉपिक, गाइज, it's not a fight, it's a debate. It's not a fight, it's not a fight. There is a big no for a fight. So always take it as a debate and always respect each other's opinion. अगर कोई कुछ बोल रहा है उसकी रिस्पेक्ट करो। अगर आप उससे सहमत नहीं हो, अगर आप उससे अग्री नहीं करते हो, so just tell that person, listen gentleman or ma'am, I do not agree with your statement. I think this thing should have done in this manner or this way. आप उसको ऐसा पुटअप करो, ऐसा आप उसको झगड़ा लड़ाई मत लो, वहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है। यू जस्ट हैव टू एक्सप्रेस योर ओपिनियंस, दैट्स ऑल इट मैटर्स फॉर यू टू बी इन दैट इंटरव्यू। एंड सेकेंड थिंग, वहाँ पे आपका GD का जो नॉलेज है, आपका वो टॉपिक के नॉलेज के ऊपर वो बात करने के लिए बिल्कुल नहीं बैठे हैं। दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू सी योर knowledge for that topic. No, they are there just to see your communication, how you communicate when you have been given a random topic. अगर आपको कोई भी एक random topic दे दिया गया है, so how you are going to take it, and what is your vocabulary, how is your grammar, and how you put things, you know, how you put your words up, and what is your behavior. You know, whenever you're fighting, whenever you're in a debate, you are instantly in a fighting mode and वो जो एकदम अग्रेशन आता है ना, एकदम जुझारूपन आ जाता है। मतलब तुमको लगता है यार इसको तो मैं पछाड़ दूंगा, यार वो नहीं करना है। इंटरव्यू मतलब किसी को हराना नहीं होता है। GD का मतलब ग्रुप डिस्कशन का मतलब किसी को हराना नहीं होता है। डिस्कशन का मतलब होता है आप एक दूसरे से डिस्कस करो, आप एक दूसरे से विचार विमर्श करो, हिंदी में बोलते हैं। सहमत असहमत, अग्री डिसअग्री, बात की बात है, डिस्कशन ज़रूरी है। तो टेक इट ऑलवेज एज अ डिस्कशन, डू नॉट टेक इट एज अ फाइट। एंड जो भी टॉपिक दिया है उस पर आप आपका ओपिनियन रखो, उसके बाद में आप हथियार डाल दो, उसके बाद आप तलवार रख दो कि सर दिस वॉज माई पॉइंट, दिस इज़ ऑल आई हैव टू से, नाउ इट्स द जजमेंट इज़ अप टू यू, हाउ यू जज माई स्टेटमेंट और हाउ यू टेक माई words, whatever I have said. So GD is all about the discussion, it's all about the politeness and all about your right attitude. Even if someone is saying something bad about that topic, you're not supposed to scold them. You don't prove them right and you cannot prove yourself right until you prove that person wrong. जब तक आप अपने आप को सही नहीं प्रूव कर सकते हो, जब तक आप दूसरे बंदे को रॉन्ग प्रूफ ना कर दो, तो ये वहाँ नहीं करना। आप वहाँ पे किसी को राइट, आप खुद राइट और उसको रॉन्ग प्रूफ करने के लिए इंटरव्यू में नहीं गए हो। यू हैव जस्ट
gone in the interview to get a normal job which you always wanted and you want to do. So guys, always focus on your opinion. Don't worry what others are saying. Don't मिक्स दी टॉपिक्स, डो नॉट मिक्स दी इमोशंस. उसमें इमोशनल मत हो जाओ. सपोज कुछ रिलीजियस पूछ लिया, सपोज मान लीजिए आप सलमान खान, शाहरुख खान इनके फ़ैन हो, उनके वर्डिक्ट के बारे में पूछ लिया, उनसे पूछ लिया कि ज़ीरो मूवी क्यों फ्लॉप हो गई, या फिर किसी से पूछ लिया कि आयुष्मान खुराना की अंधाधुंध हिट हो गई और शाहरुख खान की ज़ीरो फ्लॉप हो गई. बेटर स्टार कास्ट के रहते हैं. अगर आप शाहरुख खान के फ़ैन हो तो आप वो ब्लेज में बह जाओगे, आप वो भावनाओं में बह जाओगे. आप फिर इंटरव्यू छोड़ के आपकी प्रेस्टीज, आपका जो फेवरेट स्टार है, आप उसको डिफेंड करोगे. ये बिल्कुल भी नहीं करना है. सो प्लीज़ जस्ट कीप इट एज अ डिस्कशन ओनली. इमोशंस में मत बह जाओ किसी भी चीज़ में, इसको अदरवाइज मत लो. इट्स जस्ट अ डिबेट, इट्स जस्ट अ डिस्कशन. झगड़ा लड़ाई नहीं है. इतना लंबा खींचने का मतलब यही था कि ये वीडियो मेरा पहला या लास्ट होगा इस टॉपिक के ऊपर, तो शायद से मैंने बोला थोड़े अच्छे से समझा दूँ. मैं कितनी बकवास कर रहा हूँ, मेरी बकवास कितनों को आएगी समझ में, कितनों को नहीं आएगी मुझे नहीं पता है, बट मेरा ये बेस्ट शॉट था आपको समझाने के लिए कि व्हाट इज़ अ जीडी. एंड इंट्रोडक्शन राउंड भी मैंने बता दिया है. उसके बाद आपसे पूछ सकते हैं व्हाई ओनली एविएशन, व्हाई ओनली एविएशन. सो देर आर सो मेनी आंसर्स टू गिव. आपसे पूछेंगे कि व्हाई ओनली आवर कंपनी. ओके, सो पहले हम बात करेंगे व्हाई ओनली एविएशन. एविएशन इसके लिए यू कैन टेल देम अ स्टैंडर्ड आंसर कि सर आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू दिस जॉब और गो फॉर दिस प्रोफाइल बिकॉज आई हैव ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ इट. मैंने इसके ही सपने देखे हैं, तो मुझे कैबिन क्रू या ग्राउंड स्टाफ ही बनना था, तो इसके लिए मैं आया यहाँ पे या फिर आई हूँ इंटरव्यू में. दैट्स द रीज़न दैट आई एम सिटिंग इन जस्ट फ्रंट ऑफ यू. बट अगर आप सपोज़ कोई अच्छी जॉब कर रहे हो, अगर आप किसी कंपनी एमएनसी में हो, तो आप पूछेंगे यार आपके पास तो एक ऑलरेडी एक सेटल्ड जॉब है, सो व्हाई एविएशन नाउ, you will get less salary. Then what you are supposed to say? Then you are supposed to say that sir, I was trying since very long that I wasn't able to get it, so meanwhile I just got whatever I could and I kept trying, and I'm right now I'm in front of you sitting for my dream. So if I will achieve my dream, if I will achieve my goal, अगर मेरे को मेरा जो भी मेरी ड्रीम जॉब है मिल जाएगी, तो मैं वो जॉब छोड़ के मैं मेरी पूरी लाइफ इसके लिए डेडिकेट करूँगा. सो अभी ये वर्ड को मेरे आप कैसे भी किसी भी वर्ड्स में किसी भी चीज़ के साथ फ्रेम कर लो, एंड आपके सही तरीके से आप उसमें ग्रामर वगैरह जो भी आपको लगानी है वो लगा के आप उसको बोल दो. एंड आई थिंक इंटरव्यूअर इज़ गोना बी सो इम्प्रेस्ड बाय यू. अगर मैं होऊंगा तो डेफिनेटली हो जाऊँगा, उसका पता नहीं कब होऊंगा कब नहीं होऊंगा भी नहीं होऊंगा. सो ये हो गया. वो पूछेंगे व्हाई आवर कंपनी. सपोज़ आप किसी दूसरी कंपनी में काम कर रहे हो, आपको ये कंपनी में क्यों आना है. अगर आप सपोज़ इंडिगो में काम कर रहे हो, इंडिगो बहुत अच्छा सैलरी पे करता है, काम भी वैसा ही है ऑफ कोर्स. सो पूछेंगे आप इंडिगो छोड़ के स्पाइस जेट में क्यों आ रहे. अगर आप सपोज स्पाइस के इंटरव्यू में, तो बोलो सर आई ऑलवेज like the same answer, the cliche, it might sound so cliche, but you can give this answer, not an issue. You can tell them sir, I always wanted to join SpiceJet but I wasn't able to get it, so I tried in Indigo, I got it, and now I have the experience, so I just thought of switching to my dream company, so that's why I'm doing it. And guys, अगर आपके पास कोई और भी questions, कोई कुछ भी सवाल है, अगर मैंने कोई इसमें मिस कर दिया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ. अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ मुझे सजेस्ट करो, और कुछ भी आपको अच्छा बुरा लगता है लाइक डिसलाइक करना करो. चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, और इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी लाइक करो. तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज, एंड थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग अस सो बिग ऑन इंस्टाग्राम. टिल देन see you with some other topic. Till then, please take care and do not get scammed by any consultancy or any institute. My final words are this only. Okay, so I'm resting my words guys. So thank you so much for watching. We'll meet next time. Till then, bye bye, take care.